मधु मधुरा मामिया क्षीर सिंधु फेनो ज्वर वदना क्षीर सिंधु फेनो ज्वर वदना शुभ्र सदा शिव सुंदर सदना शुभ्र सदा शिव सुंदर सदना गहन गगन गंभीरा वरा भयवरा महती माता अलंकृत धरा जगती जाता नारायण नासिया। शिक्षा के इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एजुकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन कई ऐसे हम आज ऐसे स्कूल में हैं जहां पर वेद, उपनिषद, संस्कृत, इंग्लिश और कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में स्पेसिफिकली बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है और उनसे रूबरू कराया जाता है। आखिर किस तरीके का ये पूरा माहौल होगा, हम खुद उन बच्चों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दौर में जहां पर फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, फिर चाहे वो आगे बढ़ने की होड़ हो, वहां पर इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे एक साथ एक पटल पर पूरा होता है। हम जयपुरिया में हैं और उनसे खुद बात करेंगे, एक एक बच्चे से पूछते हैं और बात करते हैं। जयपुरिया स्कूल गोमती नगर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? नैनिका बजाज। नैनिका, आप जब स्टडी करते किस क्लास में हैं अभी? क्लास 8। क्लास 8 में किस टाइप की आपको स्टडी यहाँ पर कराई जाती है? स्पेशली क्या आपको अंतर लगता है कि और जो स्कूल्स हैं या यहाँ पे जो आप स्टडी करते हैं, ऐसा क्या स्पेसिफिक आपको पढ़ाया जाता है जो कहीं और नहीं मिलता? So when I came here, I came from a different school, and when I came here, I got to know that there are a lot of different skills we get to learn here, and there's also application-based questions which we do not learn in other schools. So this is a plus point for me, which we get to learn here. Spirituality, if you are talking about the what kind of spirituality you are facing here, I mean you are studying here, learning here, because this is also a specific part of this. Yes, ma'am. We have spirituality as a skill. We get to learn so many things, like we do shloks in the morning, which is a very important part for our education as well, because we also do silence time. So after every 2 periods, we do silence time, which gets to refresh our mind basically. So that's a very nice part of us. I think it is better for both things equally. You are studying like English, spirituality and Hindi and other languages also, and all together in one platform. So it's not like I only do English. I do all subjects nicely because the teachers are so cooperative here. So they actually see each and every child and they ask each and every child if they are coping up or not. Like we also have mentors here who help students who are not coping up very much. What is your name? I'm Banya Pandey I'm in 8th class this year. So what do you say about this schools and management and about the study? Jaipuria is a very unique school. I would like to start with that. They teach Sanskrit here from I think LKG. From nursery. Nursery. I joined here 2 years ago, and the last 2 years have been the best 2 years of my life. They value education as well as activities over here. In my old school, activities weren't paid as much attention as they are paid over here. We get to learn about spirituality. In most schools, we learned about the outside world. We learned science, computers, etc., etc. But in Jaipuria, we learned about the outside world and what matters inside, the divinity inside each of us. So I believe that's really important. Is it important in current scenario as you thinking? Of course, it's important in current scenarios. If there is no spirituality, how are we supposed to function? It helps us to refresh our mind. It helps us to be human. It helps us to realize our flaws and work upon them, improve. That's the entire case of humanity, if you ask me.
ये बच्चे इंग्लिश में बोलते हुए हमने देखा, और ये जो वैदिक की बात कर रहे हैं, जो एक्सप्रेचुअल थिंग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब हम और बच्चों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रकाश कपूर। विकास, आप संस्कृत भी पढ़ते हैं, क्या संस्कृत का क्या वैल्यू है? आप जो स्टडी कर रहे हैं किस क्लास में और किस तरीके से? मैं इस समय 9वीं कक्षा का छात्र हूँ और देखिए, वस्तुतः संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो सभी भाषाओं का सार है एक तरीके से। हमेशा से मैं ये सुनता आया हूँ कि संस्कृत से ही बाकी भाषाओं का जन्म हुआ है, और इट्स अ वेरी, मतलब उस लैंग्वेज को आप जितना डीप जाओगे उस लैंग्वेज में, उतनी आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैंने इससे पहले अपने स्कूल में भी संस्कृत पढ़ी थी, मैं वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझा। जब मैं यहाँ आया, मुझे कभी भी संस्कृत के लिए उतनी लाइकिंग नहीं थी जितनी यहाँ आके हुई। क्लास 7th में मैं यहाँ पे आया था, और यहाँ पर जिस तरीके से लेवल ऑफ संस्कृत पढ़ाई गई, बेसिक से मुझे शुरू कराया गया, मैं डरता था इस चीज़ में कि मैं संस्कृत में बोलूँगा कैसे, लेकिन जब मैं यहाँ आया मैंने संस्कृत बोलना सीखा। उसके साथ ही मैंने संस्कृत में पूरा एक नाटक किया, और वो आप कह सकते हैं एक तरीके से मुझे मेरी जो लाइफ थी उसमें मुझे पता चला कि हाँ, अगर मैं संस्कृत रेगुलरली सीखता रहूँगा तो वो किस तरीके से मुझे हेल्प करेगा। आप रेगुलर जीवन में अपने कैसे संस्कृत को यूज़ करते हैं? मतलब उसका क्या प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग कर पाते हैं अमूमन? जो आपका सबसे पहली चीज़ तो संस्कृत भाषा को लर्न करने से, जब हम संस्कृत समझते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो जो बाकी भाषाओं की जो मेरी समझ होती है कोई भी टॉपिक को लेके, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो संगीत का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, जब मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि हाँ, मैं बाकी फील्ड्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा। अब अगर मैं बात करूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट हो रहा है अभी, और यहाँ पर हमने आज उपनिषद के बारे में पढ़ा, ईशावास्य उपनिषद के बारे में हमें आज बताया गया उस तरीके से। तो मैंने जो एक चीज़ महसूस करी कि पहले मैं श्लोक पढ़ता था, मुझे ज़रूरत पड़ती थी किसी की, ताकि वो मुझे बताए सामने से कि देखो इसका ये अर्थ है, इसका वो अर्थ है। अब मैंने एक लाइन पढ़ी संस्कृत की, मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये इसका मतलब है। थोड़ा बहुत मैं खुद से इंटरप्रेट कर लेता हूँ, उसके बाद टीचर्स यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हमको बता के श्लोक सुना के दिखाइए, और कुछ ऐसा बताइए संस्कृत में जो थोड़ा सा हम समझ सकें। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात जिस तरीके से मानव जब कामनाओं की इच्छा करता है, जब उसके अंदर कामनाएं आती हैं, तो जब वो उनको नहीं पाता है तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब क्रोध की उत्पत्ति होती है, जो उसका विवेक है, जो विवेक वो अपने साथ लेके चलता है, जो उसको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, वो कहीं ना कहीं वो विवेक कम हो जाता है। जब वो विवेक कम हो जाता है तब हम अपने मार्ग से भटकने लगते हैं, और जो हमारा मेन पर्पस ऑफ लाइफ है, मेरा जो मार्ग है, जिस मार्ग पे मुझे चलना है, जिस मार्ग की शिक्षा हमें देते हैं, उस मार्ग से आदमी भटक जाता है। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? वंदे मातरम। मेरा नाम अनमोल शर्मा है और मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आप कुछ स्पिरिचुअल रिट्रीट के बारे में आज आपने क्या यहाँ से सीखा, या आपको लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट ऐसा है जो आपने लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं या आपको आगे तक ले जाए? जी, मैं एक वेद मंत्र के साथ अपनी वाणी को शुरू करना चाहूंगा। उधीर्वम जीवो असुर्ण अगाध प्रगात तम आ ज्योतिरेति आरैक पंथाम यातवे सूर्या यागन्म यत्र प्रतिरंत आयु। इसका अर्थ यह है कि हे मानव, उठो, जागो, सूर्य की तरफ जाने का प्रकाश का मार्ग खुल गया है। अपनी अज्ञानता, अपने अज्ञान, इन सब चीजों को त्यागो, उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे लिए खुला है। उस मार्ग पर चलते हुए तुम अपनी आयु में बढ़ावा करते हुए ईश्वर के संकल्प का माध्यम बनोगे। यह जो श्लोक है, ये हमको उस परम तत्व के बारे में बताता है। और स्पिरिचुअल रिट्रीट भी हमें स्पिरिचुअल रिट्रीट हमारे विद्यालय के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे अंदर जो परम तत्व समाहित है उससे हमारी पहचान कराता है। और हमारा जो विद्यालय है, उस जो संस्कृत भाषा है
वो भी एक तरह से एक माध्यम है कि हम अपने अंदर समाहित परम तत्व को पहचाने। और हमारा विद्यालय, मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारा विद्यालय हमें संस्कृत, जो कि हमारी भाषा है, उससे हमें परिचित कराता है, क्योंकि हम तब तक उस परम तत्व में नहीं समाहित हो सकते हैं, हम तब तक उस परम तत्व को नहीं पहचान सकते हैं जब हम अपनी ही भाषा, अपनी ही संस्कृति को ना पहचाने। नवसृजन जो है नवसृजित, हाँ आप बताइए, आप क्योंकि जिस क्लास में पढ़ते हैं और जिस जगह से पढ़ रहे हैं वहाँ पर फीस भी नहीं होती है और ऐसे स्टडी कराई जाती है, तो वो किस तरीके से, उसके बारे में बताइए थोड़ा। नवसृजन जैसा कि नाम में ही है, नव सृजन, एक नया जन्म। एक नया जन्म उन बच्चों के लिए जो कि हमारे समाज में रहते हैं, उनके अंदर एक आग होती है बदलने की, कुछ करने की, पर उन्हें मौका नहीं मिल पाता। नवसृजन एक ऐसा स्कूल है जो मुफ्त में उन बच्चों को वो मौका देता है। यहाँ पर हमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं मिलता है, साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। अध्यात्म के बारे में अगर आप चूंकि यहाँ से पास आउट भी हैं, किस तरीके से देखते हैं चूंकि आप वापस लौट कर आए? So, to answer my question, I would just like to say that we are taught many mantras and other parts of the ancient Indian texts. Now, the main part is not about just what is taught. It is about that when, as a students, we are learning, the most important thing I believe is that the question why. When a students ask why, I think that cannot be taught. That can just be given in an environment. Why? A person himself will excel in life if he always starts asking why to everything. The problem is that when you study other texts or when you study about the world, you ask why things happen outside the world. You learn about geography, history, politics, etc. But once you start learning about spirituality or even just these mantras and their meanings and their historical significance, the why from outside turns inwards. And that is a very powerful transformation, because when you start asking why about yourself, you think, why did I act that way? Why did I say that thing? Why did I want to learn this subject? That makes you question your abilities, and you constantly question yourself and then find answers to improve themselves. This is not a subject that can be taught. This is a skill, and this is a skill that will help you. You are 80, 90 years old. You will always keep asking why about yourself. When you study Sanskrit or when you study spirituality, then this is a thing that can be inculcated in you, the question of asking why about yourself. And that is the most, I think, unique thing about studying spirituality. Okay. बहुत सारे ये बच्चे हैं जो अलग अलग सेक्शन के हमने देखे, अलग अलग भाषाओं से बात करते हुए, और ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, एक ही जगह पर हैं। कई ऐसे हैं जिनको अभी पेड़ की तरह सींचा गया है और वो आगे चलकर बड़े कह सकते हैं कि छायादार बनेंगे। मैम हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये जी आप बताइए। मेरा नाम आरना श्रीवास्तव है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मेरे लिए मैंने क्लास 7 में स्कूल ज्वाइन किया था, और आई कुड सी अ ड्रास्टिक चेंज इन माई सेल्फ व्हेन आई जॉइंड द स्कूल. Joining the spiritual retreat taught me how we have an inner light inside us, and how consciously we can transform ourselves while doing little steps. Anjali ma'am has taught us a lot about spirituality, and she has always told us to whenever we are in any problem, we can just stay silent for about 20 seconds, and then the inner light inside us will speak. थैंक यू। मैम, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो आप ये बताइए कि आज राम की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, बनारस की बात होती है, काशी की बात होती है, मथुरा की बात होती है, स्कूल्स में देखते हैं हम, सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव रहते हैं, ट्विटर्स पे रहते हैं, लेकिन आपने जो कोऑर्डिनेशन किया है, क्या मैसेज देना है इन छात्रों के द्वारा, और इस तरीके की जो सीखते हैं उससे क्या एक संदेश हो? देखिए, वेदों में कहा है कि बिकम फ्रॉम, हम इंग्लिश में बोले या हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रॉम एनिमल मैन यू बिकम ह्यूमन मैन, एंड फ्रॉम ह्यूमन मैन यू बिकम डिवाइन, राइट? तो हमको अभी हम सब में देखते हैं इंसान का शरीर है, बट हम में कितना कुछ जड़ है, कितना कुछ एक पशु की भांति, हम कितने एक्ट्स हैं जो पशु की भांति एक्ट्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर का भी पशुत्व तक नहीं गया है। तो फिर हम अगर खाली साक्षरता देंगे स्कूलों में, तो फिर हम अपना
एक स्कूल खोलने का धर्म नहीं निभा रहे हैं। अब फीस भी नहीं लेती हैं अपने जो नया नवसृजन से फीस कैसे लेंगे? उन बच्चों को तो हम लेके आए हैं कि जो सोसाइटी ने हमको दिया है कुछ हम भी सोसाइटी को वापस दें। तो हमारे 350 बच्चे हैं और उनको वही एजुकेशन मिलता है जो सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल गोमती नगर लखनऊ में मिलता है, सेम टू सेम। चाहे गाना हो, डांस हो, सिंगिंग हो, संस्कृत हो, म्यूजिक हो, पोइट्री हो, डिबेट हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, एवरीथिंग, स्पोर्ट्स। एंड जब हमारे कंप्यूटर साइंस, AI, सब कुछ उनको वही का वही एग्जैक्ट। तो इसलिए जब हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं बिटवीन नॉर्मल स्कूल्स, हमारे 60-70 स्कूल्स एंड नवसृजन सारे संग में, नवसृजन अभी आया क्रिशेंडो में, सेकंड आया, 60 स्कूल्स को उसने बीट करके सेकंड पोजीशन पे आया। तो उनसे पैसा लेके, खाली पैसा ही थोड़ी सब कुछ है, कुछ अंदर का सेटिस्फैक्शन भी होता है कुछ। और बेसिकली बच्चों को उनकी आत्मा से वाकिफ कराना कि तुम्हारे अंदर एक ईश्वर बैठा है जो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उस पूर्ण से उनको मिलवाना, उनके साथ कांटेक्ट बनवाना, कांटेक्ट बनाने के साथ में उनके साथ में उनका कंटिन्यूअस एक कम्युनिकेशन बना रहे और थोड़े दिन में वो अंदर से जो अंदर जो पूर्ण तत्व है वो उनके बाहर से, उनके डांस में, उनके सिंगिंग में, उनकी आर्ट में, उनकी वार्तालाप में, उनकी चाल ढाल सब कुछ में आने लग जाए। तब स्कूल ने अपना धर्म पूरा किया और उसमें हम लोग एक छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं। तो साफ तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर वैदिक ज्ञान तक और इंग्लिश से लेकर संस्कृत तक, ये सब एक धरातल पर, एक पटल पर मौजूद हैं और इसमें वो सारे बच्चे जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेक्शन से परफॉर्म करते आए हैं, भले ही ये 2025 का समय हो, लेकिन वैदिक, संस्कृत, इंग्लिश और कहते हैं अपने वेदों से जुड़े हुए सारे वो बच्चे एक ज्ञान लेकर एक नया प्रकाश पूरे देश में फैलाने को तैयार हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।